میرے پاپا سرکاری نوکری میں تھے. 5 سال پہلے ان کی موت ہو گئی. تب میں 12ویں میں تھی. مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں اور تھیں. میری ماں ہم تینوں سے بہت پیار کرتی تھی. میری ماں کے ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام سلیم رکھا تھا، لیکن 5 سال کی عمر میں ہی وہ مر گیا. اکلوتے بیٹے کی موت کے بعد میری ماں بیٹے کی ساری خواہشیں میری بڑی بہن سلمہ کے اندر دیکھتی اور کہتی کہ تو سلمہ نہیں، میرا بیٹا سلیم ہے، تو ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. میں B.Ed کر چکی تھی اور ٹیچر کی سرکاری نوکری کی تیاری میں تھی. میری دونوں بڑی بہنیں مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی. جب پاپا زندہ تھے تبھی انہوں نے اپنے ایک دوست کی بیٹے سے میری بڑی بہن سلمہ کی شادی کر دی تھی، لیکن شادی کے 3 مہینے بعد ہی سلمہ کو اس کے پتی نے چھوڑ دیا اور وہ سسرال کو چھوڑ کر مائکے آ گئی. پاپا کے مرنے کے 2 سال بعد میری امی نے میری بڑی بہن سلمہ کی دوسری شادی ایک طلاق شدہ آدمی سے کر دی، لیکن یہ شادی بھی زیادہ نہیں چل پائی اور 1 سال سے بھی کم سمے کے اندر سلمہ کو اس کے دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دیا. دوسرے شوہر سے طلاق کے وقت سلمہ کی عمر 22 سال کی ہو چکی تھی اور اس طلاق کے 3 سال بعد امی نے اپنی بہن کے گود لیے ہوئے بیٹے اشفاق سے سلمہ کی تیسری شادی کروا دی اور 6 مہینے بعد ہی اشفاق کی موت ہو گئی. اس گھٹنا کے اب 3 سال بیت چکے تھے. میری مجلی بہن خالدہ نے گریجویشن کر لیا تھا اور گھر میں رہ کر اپنی شادی کا انتظار کر رہی تھی. سلمہ باجی کی عمر 25 سال ہو چکی تھی، اس لیے ماں کو سب سے زیادہ انہی کی چنتا ستاتی. ماں کا ماننا تھا کہ سلمہ میں کوئی کمی نہیں، بدقسمتی سے اس کے پچھلے 3 شوہر ہی نالائق تھے. ماں سلمہ باجی کی چوتھی شادی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے میں لگی تھی، لیکن کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا. 3 شادیوں کے فیل ہونے کے بعد میری بڑی بہن سلمہ نے تو ٹھان لیا تھا کہ وہ اب شادی نہیں کرے گی، لیکن ماں کو اس کی یہ بات پسند ہی نہیں تھی. میری ماں نے پتا کی موت کے بعد ان کی پینشن سے ہم 3 بہنوں کو پڑھایا لکھایا اور اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے کچھ روپے جوڑ کر بھی رکھ لیا تھا، لیکن کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آ پا رہا تھا. اس بات سے میری ماں تو دکھی تھی ہی، ساتھ ہی میری مجلی بہن خالدہ بھی دکھی رہتی تھی، کیونکہ بڑی بہن کے گھر میں رہتے اس کی شادی کیسے ہو سکتی تھی. مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ میں نے طے کیا تھا کہ جب تک مجھے سرکاری نوکری نہیں مل جاتی میں شادی نہیں کروں گی. رحمان میرے پڑوس میں ہی رہتا تھا اور اسکول کے دنوں سے میں اس سے پیار کرتی تھی. رحمان نے میرے ساتھ ہی اپنا گریجویشن پورا کیا تھا اور اب وہ صاحب گنج میں کرائے پر رہ کر SSC کی تیاری میں تھا. وہ ہر حال میں اپنا ایگزام کلیئر کر سرکاری نوکری پانا چاہتا تھا. ادھر میں بھی گھر پر رہ کر سرکاری نوکری کی تیاری کر رہی تھی، اسی لیے ہم دونوں کو ہی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی. رحمان کے گھر پر اس کے بوڑھے پاپا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا، اسی لیے جب بھی میرا رحمان سے ملنے کا من ہوتا میں اسے فون کر دیتی اور وہ صاحب گنج سے شانتی نگر آ جاتا اور میں اس کے گھر اس سے ملنے پہنچ جاتی. ایک دن صبح جب میں ماں کو چائے دینے گئی تو دیکھا کہ ماں کے فون پر کسی دور کے رشتے دار کا فون آیا ہوا تھا. کافی دیر تک میری ماں فون پر باتیں کرتی رہی. اس دوران میں نے اپنی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ دونوں کے بیچ سلمہ باجی کے رشتے کی باتیں ہو رہی ہیں. فون کٹتے ہی میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا امی؟ امی مسکراتے ہوئے بولی تیرے ماما کا فون تھا. میں نے کہا میرے تو ایک ہی ماما تھے جو 10 سال پہلے ہی گزر چکے ہیں، اب یہ کون سے ماما پیدا ہو گئے؟ امی نے کہا ارے یہ میرے وسیم بھیا تھے جو میرے چچیرے بھائی ہیں. کافی وقت پہلے یہ صاحب گنج سے کلکتہ چلے گئے تھے، اب لوٹے ہیں تو اپنے لڑکوں کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں. وسیم کے 3 بیٹے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تینوں بہنوں سے وہ اپنے تینوں بیٹوں کی شادی کر دیں. میں نے جب ماں کے منہ سے یہ بات سنی تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میں رحمان سے پیار کرتی تھی اور میں اس کے علاوہ اور کسی سے شادی کرنے کی تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں نے امی سے کہا امی میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، آپ اپنے بھائی سے اپنی 2 بڑی بیٹیوں کی ہی شادی کی بات کرنا، مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. امی نے کہا ابھی تو فون پر ہی باتیں ہوئی ہیں، کچھ دنوں میں وہ لوگ گھر آئیں گے تو میں تمہارے لیے کچھ سمے مانگ لوں گی. میں نے کہا سمے مانگنے والی بات نہیں ہے امی، تم سمجھتی کیوں نہیں، مجھے ابھی کہیں شادی نہیں کرنی ہے. امی نے کہا سہانی دیکھ سلمہ شادی کے بنا بوڑھی ہو رہی ہے اور خالدہ بھی اپنی
अपनी पढ़ाई पूरी कर घर में बैठी है। मैं तो तुम तीनों बहनों की चिंता में मरी जा रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। वसीम के 3 लड़के हैं और तुम 3 बहनें हो, इससे अच्छा और क्या होगा। इस वक्त अम्मी को समझाना नामुमकिन था, इसीलिए मैं अम्मी के पास से उठी और अपने कमरे में चली गई। मैंने रहमान को फोन लगाया और बोली, रहमान, मेरी अम्मी मेरे लिए लड़का देख चुकी हैं। कुछ दिनों में वो लोग रिश्ता पक्का करने मेरे घर भी आ रहे हैं। तुम्हारा इरादा क्या है बताओ। रहमान ने कहा, सुहानी, अगले महीने मेरे एग्जाम हैं, मैं उसी की तैयारी में लगा हूँ। 3 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा, इसीलिए तुम मुझे 3-4 महीने का वक्त दे दो। रहमान की बातें सुनकर मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, मेरी शादी में दावत खाने आ जाना, मैं फोन रखती हूँ। रहमान के लिए उसका कैरियर जरूरी था और एग्जाम क्लियर होने के बाद वो मुझसे शादी करेगा। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं था। इतवार का दिन था। अम्मी के नए भाईजान अपने 3 बेटों के खातिर हम 3 बहनों को देखने आने वाले थे। अम्मी सुबह से मेहमानों के इंतजाम में लगी थी। बड़ी बहन सलमा के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी खालिदा के चेहरे पर झलक रही थी। मेरी मझली बहन खालिदा तो न जाने कब से अपनी शादी के ख्वाब देख रही थी, इसीलिए मेहमानों की खातिरदारी के लिए घर में सबसे ज्यादा काम भी वही कर रही थी। अपनी बड़ी बहन सलमा की तरह मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वसीम मामा के छोटे बेटे से बात कर उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अगर वो मान जाए तो मैं शादी से बच जाऊंगी। मुझे ये डर भी सता रहा था कि हम तीनों बहनों की शादी के बाद मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। पूरे जीवन उसने हम 3 बहनों की परवरिश में खपा दिया, अब बुढ़ापे में वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। लेकिन आखिर हम तीनों थी तो लड़कियां ही ना, हमें घर छोड़कर ससुराल तो जाना ही था। दोपहर तक वसीम अंकल अपने दोनों बेटों के साथ मेरे घर पर थे। उनके साथ उनकी बीवी शकीना भी थी। नाश्ते के दौरान ही वसीम मामा अपने तीनों बेटों के बारे में बताते हुए बोले, ये सबसे छोटा अख्तर है जो ग्रेजुएशन के बाद अभी साहिबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास किताबों की दुकान संभाल रहा है, और ये मेरा मझला लड़का है शोएब जो सरकारी स्कूल में टीचर है। शोएब के बारे में जानते ही मेरी मझली बहन बड़ी खुश हुई। उसने अपने लिए जैसा शौहर सोचा था शोएब बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन अख्तर को लेकर मैं खुश नहीं थी। हालांकि अख्तर रहमान से ज्यादा सुंदर था और साहिबगंज में उसकी अपनी एक दुकान भी थी, फिर भी मैं रहमान को छोड़कर अख्तर से शादी नहीं कर सकती थी। वसीम मामा का बड़ा लड़का उनके साथ नहीं आया था। अम्मी के पूछने पर उन्होंने कहा, अब आपसे क्या छुपाना, मेरे बड़े लड़के परवेज की दिमागी हालत फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है, जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी अम्मी के चेहरे की खुशियाँ गायब हो गई और सलमा बाजी भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वसीम मामा की बीवी शकीना बानो ने कहा, 5 साल पहले परवेज की शादी हुई थी और उसकी एक खूबसूरत सी बेटी भी हुई। परवेज अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन 6 महीने पहले ही उस औरत ने परवेज को धोखा दिया और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर रातों रात फरार हो गई। इस बात का परवेज के दिमाग पर गहरा असर पड़ा और वो सदमे में चला गया। पिछले 6 महीने से परवेज का इलाज चल रहा है, अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है। आपकी बड़ी बेटी सलमा परवेज की बीवी बनकर आएगी तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शकीना ने अपने पर्स से परवेज की फोटो निकाल कर मेरे अम्मी के सामने रख दी और बोली, यह परवेज की ताजा तस्वीर है, आप देख लीजिए। अम्मी ने परवेज की फोटो को हाथ में उठाया और कुछ देर देखने के बाद शकीना से बोली, आपके बड़े बेटे के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं अपनी बड़ी बेटी सलमा से बात कर जल्द ही आपको इत्तला कर दूंगी। जाते हुए शकीना मामी ने मेरी अम्मी से कहा कि उनके बड़े बेटे की शादी के लिए अगर आपकी बड़ी बेटी राजी नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हारे घर अपने किसी भी बेटे का रिश्ता नहीं कर पाऊंगी। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद घर में अजीब सा माहौल हो गया था। मेरी मझली बहन और मेरी अम्मी तो किसी भी तरह इस रिश्ते को जोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं और मेरी बड़ी बहन सलमा इस रिश्ते के खिलाफ थे। मुझे अपनी मझली बहन पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी बेगैर कैसे हो गई कि अपनी खुशी के लिए उसे अपनी बड़ी बहन की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। एक पागल इंसान से
सलमा की शादी करने का मतलब था कि हम लोग मिलकर सलमा की जिंदगी को तबाही के दलदल में धकेल रहे हैं। लेकिन मेरी अम्मी को अब सलमा की कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि सलमा से शादी के बाद परवेज की दिमागी हालत ठीक हो जाएगी और फिर तुम तीनों बहनें उस घर में राज करोगी। लेकिन शादी के बाद परवेज ठीक हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी थी। दरअसल अम्मी सलमा से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अम्मी ने वसीम मामा के बेटों से हम तीनों बहनों के रिश्ते की ऐसी जिद पकड़ ली कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। मेरी मझली बहन माँ के इस हालत के लिए हम दो बहनों को ही कोसने लगी। घर के हालात देखकर सलमा बाजी अम्मी के पास गई और बोली, मैं परवेज से शादी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अम्मी ने सलमा से उसकी शर्त पूछी तो उसने कहा, हम तीनों के एक साथ ससुराल चले जाने के बाद आप यहाँ अकेली हो जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर घर जमाई बनकर इस घर में रहे। अगर मेरी यह शर्त वो लोग मान लेते हैं तो आप उनसे कहिए कि वो शादी की तारीख पक्की करें। इतना कहकर सलमा अपने रूम में चली गई और अम्मी ने मझली बहन खालिदा से खाना मंगवाकर अपना रोजा तोड़ लिया। खाने के बाद अम्मी ने वसीम मामा को फोन लगाकर सलमा की शर्त बयान कर दी। वसीम मामा ने कहा कि वो शाम तक इस बारे में बताएंगे तो अम्मी का कलेजा सूख गया। उसे डर था कि वसीम के घर वाले सलमा की शर्त हरगिज नहीं मानेंगे। लेकिन शाम को ही वसीम मामा की बीवी शकीना का कॉल आ गया और वो लोग सलमा की शर्त मानने को राजी हो गए थे। उनका कहना था कि तीनों की शादी के बाद परवेज और सलमा शांति नगर में ही रहेंगे और हम दो बहनें शांति नगर से विदा होकर साहेबगंज अपनी ससुराल चली जाएंगी। दरअसल वसीम मामा का बड़ा लड़का दिमाग से बीमार होने की वजह से उनके लिए किसी काम का नहीं था, इसीलिए वो घर जमाई बनकर सलमा के साथ शांति नगर में रहता तो इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इस तरह उनका एक पागल से हमेशा के लिए पीछा जो छूट रहा था। वसीम मामा ने 1 महीने के अंदर की शादी की तारीख पक्की कर दी। मैंने रहमान को फोन कर सारी बातें बताई तो वो बोला कि सुहानी, अच्छा यही रहेगा कि तुम शादी कर लो। रहमान की बातों से मुझे बेहद ठेस पहुंची, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। अब मेरे पास वसीम मामा के मझले बेटे अख्तर से शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। शादी के तारीख पक्की हो चुकी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद से हम तीनों बहनों की शादी के लिए मेरी अम्मी ने बहुत कुछ सहेज रखा था। हालांकि वसीम मामा की ओर से दहेज की कोई डिमांड नहीं थी, फिर भी मेरी अम्मी ने शादी में कोई कसर न छोड़ी। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद सलमा की शर्त के मुताबिक वो और परवेज दोनों माँ के पास ही रह गए और हम दोनों बहनें विदा होकर साहेबगंज आ गए। हम तीनों बहनों की शादी के अब 5 महीने बीत चुके थे। इस बीच मेरी मझली बहन खालिदा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। खालिदा और उसका शौहर शोएब दोनों में बेहद प्यार था। दोनों हमेशा एक दूजे में डूबे रहते। खालिदा का शौहर शोएब सरकारी स्कूल में टीचर था, इसीलिए उसके पास खालिदा के लिए वक्त था। मेरा शौहर अख्तर भी मुझसे बेहद प्यार करता था, लेकिन मैं उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाती थी क्योंकि मैं ससुराल में रहकर अपने एग्जाम की तैयारियों में लगी रहती और अख्तर को भी अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। इस बीच रहमान से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसी एग्जाम के रिजल्ट के इंतजार में थी और एक दिन मुझे पता चला कि रहमान का एग्जाम क्लियर हो गया। उसकी इस कामयाबी की बधाई देने के लिए मैंने उसे फोन लगाया। वो बहुत खुश था। मैंने उससे कहा, शादी कब कर रहे हो? उसने कहा, मैं तो शादी कर चुका हूँ। मैंने कहा, तुमने कब शादी कर ली? उसने कहा, तुम यह सब जानकर क्या करोगी? मैं रहमान की बात सुनकर काफी हैरानी में थी। फोन कटने के बाद काफी देर तक मैं सोचती रही। रहमान शांति नगर में मेरे पड़ोस में रहता था। उसने शादी कर ली और किसी को खबर भी नहीं लगी। मैंने अपनी अम्मी को फोन लगाकर रहमान की शादी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रहमान ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली और वो अब शांति नगर छोड़कर चला गया है। मेरी
शादी को 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में मैं एक बार ही अपने मायके शांति नगर जा पाई थी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन मेरी मझली बहन खालिदा तो एक दिन के लिए भी मायके नहीं गई। वो अपने शौहर को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे अपनी अम्मी और बड़ी बहन सलमा की बहुत याद सताती थी। अम्मी ने बताया था कि सलमा की वजह से परवेज की हालत सुधर रही है। इन 5 महीनों के दौरान जब भी मेरी अम्मी या सलमा बाजी से फोन पर बात होती, मैं परवेज के बारे में जरूर पूछती और यह जानकर मुझे बेहद खुशी होती कि परवेज की हालत में लगातार सुधार हो रहा था। मुझे मायके गए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था और मैं मायके जाने के लिए उतावली हो चुकी थी। रात को अपने दुकान से फारिग होकर जब अख्तर घर आया तो मैंने उससे कहा, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मुझे 1 महीने के लिए अपने मायके शांति नगर जाना होगा। अख्तर ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह ही तुम्हें शांति नगर छोड़ आऊंगा। जब मैं शांति नगर अपने घर पहुंची तो सलमा बाजी ने दरवाजा खोला। अख्तर भी मेरे साथ ही थे, लेकिन दोपहर का खाना खाकर वो साहेबगंज चले गए। सलमा और अम्मी मुझे देखकर बेहद खुश थे। थोड़ी देर में मुझे मेरे बड़े जीजा परवेज भी नजर आ गए। वो गमलों में पानी डाल रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर परवेज ने कहा, आप अख्तर की बीवी हो ना? मैंने कहा, मैं अख्तर की बीवी हूँ और आपकी बीवी सलमा की बहन भी हूँ। मेरा जवाब सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी मेरी बहन सलमा मुस्कुरा गई। मुझे याद आया कि शादी के वक्त परवेज की हालत ऐसी थी कि वो किसी जानवर की तरह मंडप से उठकर भाग गया था। फिर जैसे तैसे सलमा से उसका निकाह हुआ। 5 महीने में ही परवेज जानवर से इंसान बन चुका था। इस बात का पूरा क्रेडिट मेरी बहन सलमा को ही मिलना चाहिए। शाम को मैंने अपने जीजा परवेज को किचन में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, जीजा जी किचन में क्या कर रहे हैं? वो बोली, रात का खाना बना रहे हैं। तुमने आज दोपहर में जो खाना खाया वो कैसा था? मैंने कहा, बेहद लजीज। अम्मी ने कहा, वो खाना परवेज ने ही बनाया था। अब खाना परवेज ही बनाते हैं। परवेज के हाथ का खाना खाने से मेरी तबीयत भी एकदम दुरुस्त हो चुकी है। रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने रहमान को फोन लगाया और बोली, मैं शांति नगर आई हुई हूँ, अगर चाहो तो हम कल मिल सकते हैं। रहमान ने कहा, ठीक है, एक काम करो, कल तुम रानीगंज सोसाइटी आ जाओ, मेरा घर भी देख लेना और मेरी बीवी आलिया से भी मिल लेना, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। रहमान की यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो बिल्कुल बदल गया था। कभी वो मुझे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अब उसकी ओर से सब कुछ खत्म हो गया था। मैं तो उससे अकेले में मिलना चाहती थी, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैंने उससे मिलने का इरादा बदल दिया और रात भर उसकी बेवफाई के बारे में सोचती रही। फिर मुझे लगा कि मैं एक बार उस औरत से मिलूं जिसकी वजह से रहमान ने मेरी मोहब्बत के फूल को कुचल कर रख दिया। अगली सुबह अम्मी से मुझे मालूम चला कि सलमा बाजी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सलमा बाजी को बाहों में भर लिया और उससे कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो बाजी, तुम समझदारी न दिखाती तो 3 औलादों के होने के बावजूद आज अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाती। तुम्हारी समझदारी की वजह से ही एक पागल आदमी ठीक हो गया। मुझे तुम पर गर्व है बाजी। तभी अम्मी ने कहा, मेरा इकलौता बेटा सलीम 5 साल की उम्र में दुनिया से चला गया था। तभी से मैं सलमा को ही बेटा मानती थी और मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि सलमा ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आज मेरे इस लाडली बेटी ने बेटे और बेटी में फर्क करने वाले लोगों को गलत साबित कर दिया। जिस परवेज को बड़े से बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, उसे सलमा ने ठीक कर दिया। माँ की बातें सुनकर सलमा मुस्कुराई और अपने रूम में चली गई। मैं भी सलमा बाजी के पीछे उसके रूम में गई और उसके बगल में बैठ गई। मेरी ओर देखकर सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल परवेज एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर का बड़ा बेटा वही था, सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, इसीलिए जिस लड़की से वह प्यार करता था उससे शादी नहीं कर पाया और उस लड़की ने भी घर वालों के दबाव में आकर कहीं और शादी कर ली। बाद में परवेज ने भी शादी कर ली।
परवेज की एक बेटी हुई तो परवेज पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। उस वक्त परवेज के अब्बू वसीम मामा कलकत्ता में रहते थे और परवेज के बाकी के दोनों भाई तब बेरोजगार थे। साहेबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने वाली किताबों की जो दुकान इस वक्त तुम्हारा शौहर अख्तर संभालता है, वो दुकान परवेज ने ही बनाई थी। एक दुकान के सहारे इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालना मुश्किल था। तब परवेज ने अपने घर के ऊपर के कमरों को किराए पर उठा दिए। कुछ समय बाद ही परवेज की बीवी एक किराएदार के साथ भाग गई। सदमे में परवेज ने चूहे मारने की दवा पी ली, लेकिन वो बच गया। जहरीली दवा का असर उसके दिमाग पर ऐसा हुआ कि लोग उसे पागल कहने लगे। बड़े बेटे की ऐसी हालत जानकर परवेज के अब्बू जब कलकत्ता से लौटकर साहेबगंज आए तो उन्होंने उसका काफी इलाज करवाया, लेकिन परवेज ठीक नहीं हुआ। तब उन्होंने उसकी दूसरी शादी का फैसला किया और इस तरह हम सब की शादी हो गई। अपनी बहन सलमा के मुंह से परवेज की यह कहानी सुनकर मुझे अपने जीजा परवेज पर बेहद तरस आने लगा। मैंने सलमा से कहा, परवेज भैया को पहले उनकी प्रेमिका ने धोखा दिया और बाद में उनकी बीवी ने भी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी धोखेबाज औरतें कितनी बुरी होती हैं ना बाजी। मेरी यह बात सुनकर सलमा ने गहरी सांस ली और कहा, परवेज की वो प्रेमिका जिसने उसे धोखा दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? सलमा ने कहा, तब अब्बू जिंदा थे और मैं साहेबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर रही थी। कॉलेज के बाहर ही परवेज की किताबों की दुकान थी और कॉलेज आने जाने के दौरान मुझे परवेज से प्यार हो गया। परवेज भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया करता, लेकिन जब अब्बू को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया और मेरी शादी तय कर दी। शादी के बाद मैं भी परवेज को भूल गई, लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या शादी से पहले तुमने किसी आदमी से जिस्मानी ताल्लुकात बनाए थे? मैंने उसे परवेज के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और वह मेरे इस सच को हजम नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि मेरे पहले शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और शादी के बाद एक दिन मेरे दूसरे शौहर ने भी वही सवाल कर दिया और फिर वो भी सच हजम नहीं कर पाया और उसने भी मुझे तलाक दे दिया। मेरा तीसरा शौहर पहले से बीमार था। शादी के बाद वो मुझे विधवा बनाकर मर गया। जब परवेज का रिश्ता आया और परवेज की अम्मी ने परवेज की फोटो दिखाई तो मुझे लगा कि अपनी गलती को सुधारने का मुझे मौका मिल गया। मैंने परवेज को घर जमाई बनाने की शर्त भी इसीलिए रखी ताकि मैं पूरी आजादी के साथ उसका इलाज कर सकूं और मैं उसे नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक के पास ले गई। उन्होंने हॉस्पिटल में 2 महीने तक परवेज का बेहतरीन इलाज किया और मैंने घर पर उसकी अच्छी तरह देखभाल की, जिसका नतीजा ये हुआ कि परवेज बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरा पुराना वाला परवेज मुझे वापस मिल चुका है, इसीलिए मैं बेहद खुश रहती हूँ। सलमा बाजी की बातें सुनकर मैं बेहद हैरान थी। जब इंसान न्याय की आस छोड़ देता है तो वक्त खुद ही इंसाफ कर देता है। सलमा बाजी के साथ वक्त का यह इंसाफ मुझे अब समझ आने लगा था। मुझे अपने मायके आए हुए 1 महीने का वक्त गुजर चुका था। इस बीच मेरे एग्जाम भी खत्म हो चुके और अख्तर का भी लगातार फोन आ रहा था, लेकिन मैं अभी साहेबगंज अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी। एक दिन अख्तर का फोन आया और उसने 2 दिन बाद मुझे बुलाने मेरे घर आने की बात कही तो मैंने तय किया साहेबगंज जाने से पहले मैं एक बार रहमान के घर जरूर जाऊंगी। अख्तर का फोन कटते ही मैंने रहमान को फोन लगा दिया, लेकिन उसका फोन लगातार बिजी जा रहा था। मैंने रहमान को एक मैसेज किया कि मैं आज तुम्हारे बताए एड्रेस पर आने की सोच रही हूँ, लेकिन दोपहर तक मैसेज का कोई जवाब नहीं आया तो मैं अपने काम में लग गई। आधे घंटे बाद मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि पड़ोस में रहमान के अब्बू रिजवान मियाँ का इंतकाल हो गया है। यह खबर सुनकर मुझे लगा कि अब मुझे रहमान और उसकी बीबी से मिलने रानीगंज उसके घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग खुद ही यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। थोड़ी देर में मेरे मोबाइल पर रहमान का मैसेज आया कि इस वक्त शांति नगर में है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है।
मैं अपनी अम्मी के साथ रहमान के घर गई और रहमान के अब्बू का जनाजा उठने के बाद तक मैं रहमान के घर ही रही। इस बीच रहमान से दुआ सलाम होने के अलावा मेरी कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उसकी बीवी आलिया को देख लिया था। वो सुंदर तो थी, लेकिन उम्र में रहमान से थोड़ी बड़ी भी थी। वो हमारे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैंने उससे कहा, मेरा नाम सुहानी है, पड़ोस में ही मेरा घर है, 1-2 दिनों में अगर आपको फुर्सत मिले तो रहमान भैया के साथ मेरे घर आ जाइएगा। आलिया ने कहा, जी जरूर, मैं परसों यहाँ से रानीगंज के लिए निकलूंगी तो आपके घर से चाय पीकर ही जाऊंगी। मैं अम्मी के साथ अपने घर वापस आई और रहमान के बारे में सोचने लगी, आखिर आलिया ने रहमान पर ऐसा क्या जादू किया कि उसने मुझे ठुकरा दिया। आलिया खूबसूरत है, लेकिन क्या मैं आलिया जितनी खूबसूरत नहीं थी? आलिया तो रहमान से उम्र में 2-4 साल बड़ी ही थी। रहमान के अब्बू के इंतकाल हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। सुबह सुबह मैं उठी ही थी कि अख्तर का कॉल आ गया। वो बोला कि वो साहिबगंज से निकल चुका है, 1 घंटे में शांति नगर पहुंच जाएगा। अख्तर का फोन कटने के बाद मैं अपनी ससुराल जाने की तैयारी में लग गई। मैं बाथरूम से नहाकर निकली ही थी कि घर की डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रहमान और उसकी बीवी आलिया खड़ी थी। मैंने दोनों को अंदर बुलाया और घर के अंदर ले गए। ड्राइंग रूम में मेरी अम्मी रहमान और आलिया से बातों में लग गई और मैं मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। तभी किचन में मेरे जीजा परवेज आ गए। उन्होंने कहा, सुहानी, अख्तर आ गया क्या? मैंने कहा, नहीं जीजा जी, अख्तर अभी नहीं आए, पड़ोस में रहने वाले रहमान और उनकी बीवी आए हैं, उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। जीजा जी ने कहा, मुझसे कह देती मैं बना लाता। अब तुम ड्राइंग रूम में जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, अभी भी तुम्हारे अंदर दिमाग की थोड़ी कमी रह गई है शायद। अरे मेहमानों के सामने तुम चाय लेकर जाओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। परवेज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब वो जमाना गया जब औरतें सिर्फ किचन के लिए पैदा होती थी। तुम जाओ और पूरी दुनिया को बता दो तुम्हारे घर में किचन एक मर्द संभालता है। जीजा जी की इस बात पर मैं जोर से हंसी और वहाँ से ड्राइंग रूम में आ गई। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन सलमा भी मेहमानों के बीच बैठी थी। तभी आलिया ने कहा, मैं रहमान से शादी के बाद पहली बार यहाँ शांति नगर आई और यहाँ आकर मुझे बेहद अच्छा लगा। आप जैसे लोगों से मिलकर तो मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी। तभी ड्राइंग रूम में परवेज हाथों में चाय का बर्तन लिए हाजिर हो गए और जैसे ही परवेज की नजर आलिया पर पड़ी, परवेज के हाथों से चाय का बर्तन नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। आलिया के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। तभी आलिया की छोटी सी बेटी परवेज के पास आई और उसे पापा कहकर उसे चिपट गई। ड्राइंग रूम के इस मंजर को सलमा और मैं देख रहे थे और सब कुछ समझ भी चुके थे। मैंने हालात को संभालने की कोशिश की और जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को समेटकर इकट्ठा करते हुए बोली, जीजा जी आप बैठ जाइए, हकीकत सबके सामने है, लेकिन इस हकीकत को अब कोई नहीं बदल सकता। बीता हुआ कल अब इतिहास बन चुका है और इतिहास को लेकर हम आज किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आलिया शर्म के मारे सर झुकाए हुए बैठी थी तो रहमान का हाल भी आलिया जैसा ही था। दोनों धोखेबाज थे। रहमान ने मेरे साथ धोखा किया था तो आलिया ने परवेज की जिंदगी तबाह कर दी थी। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। मैं समझ गई कि यह मेरा शौहर अख्तर ही होगा। मैं झट से उठी और दरवाजे को खोला तो सामने अख्तर ही था। मैं उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई तो वो भी आलिया को वहाँ देखकर हैरान रह गया। अम्मी ने अपने दामाद से बैठने को कहा, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का हो चुका था। फिलहाल किसी के पास कहने को अब कोई शब्द नहीं बचा था। लेकिन तभी आलिया ने सिर ऊपर उठाया और बोली, 2 साल पहले परवेज अपने काम को लेकर बेहद परेशान थे। वो कई दिनों तक घर से बाहर रहते। मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसी बीच रहमान मेरे घर किराए पे रहने आया। रहमान पूरे दिन अपने कमरे में रहता।
इधर मैं भी अपनी तन्हाइयों से जूझती हुई अपने कमरे में रहती और कुछ दिनों बाद मोहब्बत के रिश्ते ने हम दोनों की तन्हाइयों को खत्म कर दिया। एक रात परवेज किसी काम से बाहर थे, रहमान मेरे कमरे में था। तभी अख्तर ने हम दोनों को साथ देख लिया और धमकी देकर चला गया कि सुबह होने पर वह घर में सभी को यह बात बता देगा। डर की वजह से उसी रात मैं और रहमान घर से निकल गए और रानीगंज आकर रहने लगे। सामने खड़ा अख्तर आलिया को देख देख कर गुस्से में लाल हो रहा, लेकिन मैंने उसे संभाला और आलिया को कहा कि वो रहमान के साथ रानीगंज के लिए निकल जाए। दोनों उठे और अपनी बेटी को साथ लिए घर से निकल गए। उनके जाते ही मैंने अख्तर से कहा, अख्तर जो हुआ उसे भूल जाओ। अख्तर ने कहा, कैसे भूल जाऊं? आलिया की बेवफाई की वजह से मेरे भाई की दिमागी हालत खराब हो गई। लोग उसे पागल कहने लगे थे। मैंने कहा, अंत भला तो सब भला। अब तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उन्हें सलमा के रूप में एक अच्छी बीवी मिल चुकी है और खुशखबरी की बात यह है कि तुम्हारी बड़ी भाभी सलमा इस वक्त प्रेग्नेंट भी। यह खबर सुनकर अख्तर का सारा गुस्सा खत्म हो गया और उसने अपनी भाभी सलमा के हाथों को पकड़कर चूम लिया। 1 साल बीत चुके हैं। अब मैं साहेबगंज के केंद्रीय विद्यालय में सरकारी टीचर हूँ और मेरी बहन सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया है। अम्मी ने उस बच्चे का नाम सलीम रखा है। कहानी से सीख, आलिया को रहमान से इश्क हुआ। इस इश्क से परवेज का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि सुहानी का भी दिल चकनाचूर हुआ। इसलिए आपको किसी से भी इश्क हो जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप जब किसी और से विश्वास के रिश्ते में बंधे हो तो ऐसा इश्क हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप